बेटा इसे फॉर्म है मुझे चाहिए बहुत कोई नहीं अपना और इतना कैरेक्टर को देते அந்த லைட் ரொம்ப தலல அசிங்கமா வருது லைட் பெட்டர் அது கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப் பண்ணுன்னு சொல்ல அவர்கிட்ட அசிங்கமா ஃபுல்லா தெரியுது आप थोड़ा क्लोज ले सकते हैं क्या? Can you take it a little closer? இதுல வருது இது குட் ஆனா ரொம்ப ஐ நீட் ஹைட் ஹியர் ரொம்ப கீழே போச்சு அந்த சேர் சரியா இருக்குமா அது தட் ஒன் நோ திஸ் ஒன் அந்த Good evening, everyone. Yes, good evening. Are you able to hear me? Am I audible? Yes, you are. You can hear me? Okay. Yeah, sure. Good evening, ma'am, and good evening, everyone present in the webinar. And of course, good morning, Mr. Srivastava. It's my proud privilege to welcome you all on behalf of RCA Girls PG College to this webinar entitled Staying Emotionally and Mentally Healthy During COVID-19. As per our tradition, we begin every educational activity with the invocation of Goddess Saraswati, and for that, I call Dr. Namrata Mishra, HOD of Vocal Music in our college, for Saraswati Vandana. Dr. Namrata Mishra. Thank you, ma'am. शुक्लां ब्रह्म विचार सार परिमाण माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिका विदधते पद्मासने संस्थिता
वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी भवानी दयानी महावातवानी सुंदर मुनि मानी सकल बुद्धि ज्ञानी भवानी दयानी भवानी दयानी जग जननी जग जानी जग जननी जग जानी महिषासुर मर्दिनी ज्वालामुखी चांडी हमारे बदलानी भवानी दयानी भवानी दयानी महाभागवानी सुंदर मुनि मान सकल बुद्धि ज्ञानी भवानी भवानी दयानी जग जननी जग जानी महिषासुर मर्दिनी ज्वालामुखी चानी अमर बददानी भवानी 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 दयानी भवानी दयानी भवानी थैंक यू Thanks, Namrata. It gives me immense pleasure to welcome our chief guest this evening, the heartthrob of every Indian film lover, one and the only dream girl of Indian cinema, and our committed, devoted, and beloved MP, Mrs. Hema Malini, who has very kindly agreed to join us to inaugurate this webinar and the Mask Bank of RCA College. Madam, this city of Lord Krishna is truly blessed to have you as our MP for the second term. And this college is even more privileged. I would like to share with the esteemed audience here that Honorable Madam is greatly concerned for the empowerment and upliftment of girls of this city, and on our request has very kindly and generously arranged rupees 50 lakhs from the MP fund of Mrs. Rekha Ganeshan for setting up of 4 labs, one each for physics, chemistry, botany, and zoology for our newly started BSc classes. Ma'am, it was your sole and committed effort that my dream of starting science faculty has been realized even after so many administrative hurdles. Ma'am, I'd like to give you the update that the construction work, which was interrupted due to lockdown, has now been restarted. The roof has been casted, and I hope that the civil work will be completed just within a month or two. Ma'am, I, together with RCA family, welcome you to this web platform. It's also my proud privilege to welcome our distinguished speaker, key speaker, who is currently CEO of Refine M, a project management consulting company of America, Mr. N.K. Srivastava, who is a seasoned professional and motivational speaker and has a long professional experience of over 30 plus years as software engineer, manager, consultant, agile coach at IBM. And it is his very kind gesture that
though he is engaged in training professionals, he has agreed to deliver for our girls today. The RCA College family extends a warm welcome to you, sir. Thank you. I also welcome the distinguished NSS authorities present in the webinar, all participants, teachers, research scholars, my beloved students, and my journalist friends from print and electronic media. Welcome everybody once again. We all know that this COVID-19, this has created a drastic change in all our lives. एक बहुत बड़ा बदलाव ये महामारी हम सब की जिंदगी में लेकर आई है। लगभग 3 माह पहले एक झटके से मानो पूरी जिंदगी थम गई थी। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियां, दुकानें, बाजार, यात्राएं सब बंद। पूरे माहौल में एक अनिश्चितता और अव्यक्त डर। दिनों दिन कोविड के संक्रमितों की बढ़ती संख्या से अभी भी लोगों के दिलो दिमाग पर एक अनजाना भय बना हुआ है। ऐसे में हम लोग फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग करके अपने को और अपने परिवार को बचाने के लिए पूरी सावधानियां तो बरत रहे हैं, लेकिन इस सब से हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जिंदगी में आए हुए जो बदलाव हैं और अपने आसपास के माहौल में जो डर समाया हुआ है, भविष्य की जो अनिश्चितता है, जो अनसर्टेनिटी है, उसके कारण बहुत से लोग मानसिक अवसाद और एक अनजाने डर से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इसलिए आज इस वेबिनार के थ्रू हमारी ये कोशिश है कि ऐसे समय में कैसे खुद को और अपने परिवार को मानसिक और भावनात्मक रूप से, इमोशनली और मेंटली किस तरह से हम लोग स्ट्रांग रख सकते हैं, किस तरह से इससे लड़ाई जीतने में हम लोग मजबूती दिखा सकते हैं। इससे हमारे जो स्पीकर हैं वो हमारी ऑडियंस का परिचय कराएं। इसी तरह सोशल सर्विस, समाज सेवा, ये भी एक ऐसा ही माध्यम है जो इस मुश्किल घड़ी में हमें भावनात्मक और मानसिक संबल देता है। हम अपनी इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आरसीए कॉलेज की छात्राओं और स्पेशली हमारी एनएसएस की स्टूडेंट्स और एनएसएस ऑफिसर्स के साथ पूरे लॉकडाउन में पूरे उत्साह और अपने सीमित रिसोर्सेस के साथ किसी न किसी तरह से समाज सेवा के छोटे छोटे कामों से अपने आसपास के एरिया से जुड़े रहे हैं। इसके बारे में डिटेल हमारी एनएसएस ऑफिसर्स देंगी, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि ये मास्क बैंक का जो कंसेप्ट है, ये जब मेरे सामने आया तो इसमें धीरे धीरे करके ये, क्योंकि ये एनएसएस टीम का ही कंसेप्ट था, और जब इसको मैंने अपने सारे कॉलेज के मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया तो इसमें बहुत सारी छोटी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हमारी स्टूडेंट्स, स्टाफ, मेरी और मैनेजमेंट की आई और ये एक बड़ा कलेक्शन बन गया। अभी हमारी एनएसएस ऑफिसर्स आपको ये बताएंगी कि हमारी स्टूडेंट्स ने कितने मास्क बनाए हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि यहाँ पर जो मास्क बनवाए गए हैं वो भी हमारी स्टूडेंट्स हैं जिनको हमारे यहाँ खजानी वेलफेयर सोसाइटी ने स्किल डेवलपमेंट की और स्टिचिंग की ट्रेनिंग दी थी। उन लोगों के विशेष सहयोग से ये कपड़ा और ये मटेरियल प्रोवाइड करके उन स्टूडेंट्स से बनवाए गए हैं, जो कि एक उनके लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक छोटा सा एफर्ट था। और ये जो मास्क बैंक है, इसका उद्देश्य हर जरूरतमंद को आने वाले समय में मास्क प्रोवाइड करना है, so that no one can be without mask in the coming years, because this is going to be a very
effective weapon to fight with the COVID-19. और इसके साथ ही मैं इनवाइट करूंगी हमारी एनएसएस ऑफिसर डॉक्टर नीतू गोस्वामी को, जो कि आपको ये बताएंगे कि एनएसएस की छात्राओं ने क्या क्या कार्य किया इस दौरान। डॉक्टर नीतू गोस्वामी। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। आज के इस अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में उपस्थित आप सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज कोविड-19 के संकट काल में सभी देशवासी धैर्य रखते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए किसी न किसी रूप में अपनी क्षमताओं के अनुकूल अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, जो इस देश की सकारात्मक सोच और ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसे में हमारे महाविद्यालय की राष्ट्रीय योजना की छात्राओं द्वारा भी सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए आभासी मंच से बहुत सारे कार्य किए हैं। और ये सारे कार्य केवल आभासी मंच से नहीं किए गए हैं, अपितु अपने आस पड़ोस में और जहां उनकी पहुंच थी वहां जाकर उन्होंने अपने कार्य किए हैं। उन छात्राओं ने अपनी इस सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए स्लोगन, पोस्टर प्रतियोगिता, लेख प्रतियोगिता, मास्क बनाना आदि प्रतियोगिताओं में न केवल अपनी भागीदारी तय की, अपितु अपने आस पड़ोस परिवार में भी जागरूकता का कार्य किया है। छात्राओं द्वारा योग के कार्यक्रम चलाए गए। उन्होंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, आवासीय जो पटल बनाया हुआ था, उस पर नित्य प्रति अपनी प्रतिदिन एक छात्रा अपनी वीडियो को शेयर करती थी और योग कराती थी। साथ ही अपने परिवारजनों को अपने पड़ोस के क्षेत्रों में भी उन हमारी छात्राओं द्वारा योगाभ्यास कराया गया। छात्राओं द्वारा पर्यावरण दिवस पर अपने घरों और पास के क्षेत्रों में पौधारोपण का पुनीत कार्य किया गया। हमारी छात्राओं ने सरकार द्वारा जारी किए गए आयुष कवच ऐप, आरोग्य सेतु ऐप न केवल अपने फोन में डाउनलोड किए, अपितु जन जागरूकता करते हुए अपने परिवार और परिचितों को भी उनके मोबाइल में डाउनलोड करवाए। साथ ही छात्राओं ने दीक्षा आईगोट का प्रशिक्षण भी लिया। और मुझे खुशी है कि आज की हमारी इस वेबिनार में हमारी छात्राओं की संख्या अधिकतम स्थिति में है। आज के इस वेबिनार के लिए मैं अपनी यशस्वी प्राचार्य जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें ऐसी वेबिनार से जुड़ने का अवसर प्रदान किया जो आज प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है। इसके लिए पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। Now I invite Dr. Seema Sharma to tell the audience about the activities of the Mask Bank. Dr. Seema Sharma. Dr. Seema Sharma. हेलो। हाँ, सीमा जी, आप हमारी ऑडियंस को मास्क बैंक और मास्क बनाने की गतिविधियों के बारे में बताएं। धन्यवाद मैडम। आभासी सभागार में आप सभी को सादर प्रणाम। आदरणीय मुख्य वक्ता महोदय, हम सभी की चहेती हमारी सांसद महोदया, प्राचार्य जी, प्रबंध समिति के सदस्यगण, मेरे सहयोगी साथीगण, राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य संपर्क अधिकारी, समन्वयक महोदय, नोडल अधिकारी, अन्य अधिकारीगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को विदित है कि हम सभी ऐसे ज्ञात किंतु अदृश्य शत्रु से भयाक्रांत हैं, जिसका आने वाले 1-2 साल तक कोई निदान संभव नहीं है। और इसका संक्रमण इतना तीव्र है कि देश में विगत 10 दिनों में ही संक्रमितों की संख्या 2 लाख से 3 लाख हो गई, जबकि पहला 1 लाख मरीज आने में 110 दिन लगे थे। तो बचाव ही इसका उपाय है और बचाव हेतु मास्क लगाना अनिवार्य है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हमारी ऊर्जावान प्राचार्य जी के निर्देशन में यह मास्क बैंक बनाया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि आने वाले समय में
जबकि इस सत्र की बकाया परीक्षाएं संपन्न होंगी एवं आगामी सत्र प्रारंभ होगा, तो यदि कोई महाविद्यालय में मास्क लगाकर नहीं आता है तो उसे मास्क उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वह भी सुरक्षित रहे और अन्य भी। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी जरूरतमंद होगा उसको मास्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस कड़ी में मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगी कि अब तक हमारी छात्राओं ने 650 मास्क अपने आसपास जरूरतमंदों को, फल सब्जी वालों को, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मियों को वितरित किए हैं। ये सभी छात्राएं मोबाइल के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, अतः इस प्लेटफॉर्म पर मैं उन्हें आपसे रूबरू नहीं करवा पा रही हूँ, लेकिन मैं उनका नाम अवश्य लेना चाहूंगी। ये हैं देवांशी गौड़, चांदनी शर्मा, कल्पना चौहान, मानसी मिश्रा, काजल दीक्षित, गौरी, पूजा कश्यप, दुर्गेश कुमारी, महिमा सिंह, पूजा कुमारी, जागृति, पुत्री, सपना, पल्लवी आदि। इसी क्रम में मैं और मेरी सहयोगी अधिकारी ने 2500 मास्क मथुरा के हृदय स्थल होली गेट, सदर बाजार, कृष्णापुरी आदि इलाकों में पत्रकारों, पुलिस कर्मियों, सभी ढकेल वालों और स्थानीय जरूरतमंदों में वितरित किए हैं। मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगी कि इन छात्राओं ने न केवल मास्क बांटे बल्कि मास्क बैंक में भी जमा करवाए। मास्क बैंक को और अधिक परिष्कृत किया हमारी प्राचार्य जी, प्रबंध समिति के सचिव महोदय एवं सहयोगी शिक्षिकाओं द्वारा। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से आपकी आभारी रहूंगी। इसी श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के दौरान छात्राओं के लिए मास्क सबके लिए प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें छात्राओं ने उत्साहवर्धक होकर भागीदारी करी और अपने सभी परिवारीजनों के लिए मास्क बनाए और कोई भी बिना मास्क नहीं रहेगा, यह संकल्प लिया। इस हेतु मैं सभी छात्राओं की सराहना करती हूँ। इसी क्रम में एमए राजनीति शास्त्र की छात्रा यामिनी वशिष्ठ ने अपनी माताजी के सहयोग से अकेले ही 1000 मास्क विधवा आश्रम एवं अन्य जरूरतमंदों में बांटे। वह इस हेतु बधाई की पात्र है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। ओवर टू मैम। थैंक यू सीमा। अब मैं अपने ऑडियंस को और मैम को ये दिखाना चाहूंगी कि अभी जो मास्क हमारे पास है एट प्रेजेंट, ये सभी मास्क हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। कुछ जो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं और कुछ ने घर बैठे ही, और ये मास्क बच्चे खुद बनाकर लाए हैं। जागृति भारद्वाज फ्रॉम बीकॉम फाइनल ईयर, महिमा सिंह बीकॉम फर्स्ट ईयर, मुक्ति भारद्वाज बीकॉम थर्ड ईयर, देवांशी गर्ग बीए फर्स्ट ईयर, कल्पना चौहान बीए फर्स्ट ईयर। और इस तरह से ये ढेरों मास्क हैं जिनमें पूरे आरसीए फैमिली का कंट्रीब्यूशन है, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। एंड नाउ आई वुड लाइक मैम I would request ma'am to please declare this mask bank open for the public. As it is a virtual presentation, I can't tell you to So Radhe Radhe. You can hear me? Ribbon or inaugurate in some other way. You just declare that this Sound mask bank मास्क बैंक का उद्घाटन हो रहा है, now. जिसे मैं उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो आज से ये मास्क बैंक जो है ये खुल रहा है पब्लिक के लिए। I am happy to open this mask bank.
हो गया? Very strange experience. We are Right, used to go in a public and do all this, you know. right, First right. time sitting at home, we are doing inaugurating. New experience. Yeah, ma'am. Yeah. You are audible. Dr. Preeti, your voice is choppy, Yeah, not heard. not आपकी heard. आवाज नहीं आ रही है. कुछ तो कह रही है. प्रीति जी, प्रीति जोहरी. Now, you to bless students. Yeah, blessed. Yeah. And Can I? अभी क्या? और तेरी वाली है. हाँ, कुछ उनका वीडियो आप दिखाई नहीं ऑडियो दे रहे हैं. प्रीति जी is not seen. दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई भी नहीं दे रहे. आवाज आ रही है मैम की? अब आ रही है. मैम की. हाँ जी, बोलिए. मैम, बच्चों को कुछ आशीर्वाद दीजिए. हाँ जी, ठीक है. हाँ. Motivational speaker and a skill trainer, N.K. Srivastava ji from USA, and principal RCA College के श्रीमती प्रीति जौहरी जी, प्रोफेसर V.K. सारस्वत जी हैं, I don't know, Dr. Yeah. Ritu Goswami, and all the entire student of the girls from RCA College, and other people who are connected with this program. I feel extremely happy to participate in this international webinar. Especially to inaugurate the mask bank and staying emotionally and mentally healthy during this COVID-19. This is the main object of this program. मुझे बहुत ही खुशी हुई कि RCA कॉलेज के सभी बच्चियों ने टाइम वेस्ट न करते हुए घर में ये लॉकडाउन के टाइम पे समय का पूरा उपयोग किया और बहुत ही अच्छी तरह से ये मास्क बनाने का सीखा है और इसका बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग होने वाला है पूरे जनता को. मथुरा में जितने भी लोग हैं उनमें तो जो जिसको भी चाहिए मास्क यहाँ से आकर ले सकते हैं. और बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने सब सीखा है, ये अच्छे ट्रेनिंग लिया, ट्रेन करके अपने घर में बैठकर अपने परिवार के साथ मिलकर आप सब लोगों ने ये बनाया है. ये बहुत ही अच्छी बात है. सिर्फ एक सवाल मुझे पूछना था कि ये इज इट गोइंग टू कॉस्ट मनी और यू आर गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट? No, we will be giving free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट. दैट्स वंडरफुल. बहुत बड़ी अच्छी बात है. और जो जिस लोगों को क्योंकि आज के जमाने में ऐसा बदलाव आया है इस वक्त कि हम 2 महीने पहले हम लोग फ्री घूम रहे थे. आज हम अपने आप को ढक के छुपा के मुंह सब बंद करके ऐसा जाना पड़ रहा है. ऐसा एक हालात हो गई है. ये बहुत ही दुखदायक है लेकिन वी हैव टू फेस इट. ऐसे एक मुश्किल समय में हमें ऐसे बाहर हम घूम नहीं सकते हैं तो मास्क की तो बहुत जरूरत है. मास्क चाहिए, ग्लव्स चाहिए, एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. वी कैन नॉट बी फूलिश जस्ट नहीं हमें कुछ नहीं होगा ये तो नहीं बोल सकते हैं. कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी को भी, क्योंकि ऐसे एक बीमारी है ये. इससे बचने के लिए हम सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. इसके लिए मास्क तो चाहिए ही चाहिए. जितना मास्क बनाएंगे मेरे ख्याल में सबको जरूरत है. हम बाहर भी देखते हैं जब गाड़ी में कहीं पे भी जाते हैं तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी मास्क पहन के ही जाता है. तो ऐसे एक सिचुएशन आ चुका है पूरे वर्ल्ड में.
तो बहुत अच्छी बात है कि आरसी कॉलेज जो मुझे बहुत ही पसंद है, इट्स माय वेरी फेवरेट कॉलेज, वन ऑफ द फेवरेट कॉलेज इन मथुरा, so for which I was happy to contribute some funds for the lab and all. तो जिसका बहुत जल्द बिल्डिंग बन जाएगा और उसके इनॉग्रेशन में शायद मैं भी आऊंगी जरूर। और ये जो ये कोविड की वजह से जो लोग डरे हुए हैं, घबरा के घर में बैठे हैं, उनके लिए भी ये बच्चे लोगों को आप बताइए कि कैसे आत्मविश्वास दें, आत्मनिर्भर होने की बात करें कि डरने का नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। अपने आप को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे तो हम आगे दुनिया में बढ़ सकते हैं। और ये कोरोना जो आया है ये बहुत तकलीफ तो देता है इस वक्त, लेकिन इसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है, ये बात मैं जरूर कहूंगी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा चाह रहे थे कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, तो उस वक्त थोड़ा बहुत तो स्वच्छता की ओर सब लोग आगे बढ़े, लेकिन ये कोरोना ने आके ऐसा कर दिया कि सबको जबरदस्ती स्वच्छ रहना ही पड़ेगा, नहीं तो जी नहीं सकते हैं, ऐसे एक हालत हो चुकी है। तो वी हैव टू थैंक कोरोना आल्सो, बिकॉज़ जो भी आता है सामने उसका सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी आ गया है, ये कोरोना है, तो इसके साथ जीने का भी हमें सीख कर आगे बढ़ना है। तो कैसे बढ़े जाए, बढ़ना चाहिए, ये सब हम लोग अपने आप भी सीखेंगे। वी विल आवरसेल्फ एक्सपीरियंस एंड स्टार्ट लर्निंग एवरीथिंग। एंड एट दिस टाइम ये आप लड़कियों सब गर्ल्स बैठकर घर में बना रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय बात है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आप प्रिंसिपल मैडम प्रीति जौहर जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, and you have started this, and I wish you all good luck. So very soon I'll come and meet you all in Mathura. Thank you so much for giving this opportunity to participate in your webinar. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. We are really blessed with your encouraging words, and I'm going to show you the variety of designs they have made. The designer nice. masks. This one with a different design, then with a third design. So creative are these girls. Then this one is another with a different design. You can match it with your dresses. And yeah? many more. Many more. So बहुत अच्छा. This one. It matches And with the shirt. This one we are planning to distribute in hospitals. Hospitals, okay. Very good. Yeah. बहुत अच्छा. Yeah. Very neat and clean work, I must say. Very nice. There are so many matching masks. Good. This one. All cotton material में बनाया गया है. I think with your blessing, this work will go on, and we will keep. Yeah. इनकी आवाज कट रही है बीच बीच में. आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है. हाँ, आवाज कट रही है बीच बीच. This matches with your shirt. This one. हाँ, अभी आ रही है. Yeah, this one we are going to distribute in hospitals, and वो खाकी वाला देना. We are khaki. Yeah, and this one we are going to distribute to policemen. Correct. Khaki Colors are yes, correct. they are Yeah. got the blessings. I thank you very much, NK sir, for his presentation mentally and emotionally. Mr. NK Shiva, I invite to begin your presentation.
किसके ओके ओके ऑल अब राइट आप हम लोगों को गाइड कीजिए कि कैसे हम लोग को इमोशनली और मेंटली हेल्दी रहना है. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Preeti and all the organizers for giving me this opportunity to present my views, my ideas on how to keep emotionally and mentally healthy in this difficult time. So whenever you have such kind of difficult time, then emotional disturbance is kind of natural. That's what we call. And so we'll talk more a lot about it. And I am very privileged and मेरा बहुत सौभाग्य है हेमा मालिनी जी आपके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर करने के लिए. मैंने आपकी बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं. सीता और गीता मुझे अभी भी याद है. बहुत पहले देखी थी. So ये वेबिनार जो है और जैसे भी मैं वेबिनार्स देता हूँ करीब पिछले 10-15 साल से मैं वेबिनार्स और ट्रेनिंग्स और कोचिंग करता हूँ. तो मेरे जितने भी ये वेबिनार्स और सेमिनार्स होते हैं दे आर मोर लाइक कन्वर्सेशन. और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस एनवायरनमेंट में वेबिनार हो रहा है उसमें उसी लैंग्वेज में. तो मेरी स्लाइड्स जो हैं वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं इंग्लिश हिंदी मिला जुला के इस तरह से कम्युनिकेट करूंगा कि आप सब लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए और हम ये कन्वर्सेशन करें. So let me go and share my presentation. So let's see how do I do that. Okay, good. Show my screen. Okay. So आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? Okay, very good. So let's get started. So rough agenda हम लोग इसको follow करेंगे. Introduction, some context setting we will do, and then we'll talk about how why it is critical to stay emotionally and mentally healthy during the COVID time. And I will also share with you a 5-point strategy that I have developed. जो कि मैंने तैयार करी है अपने एक्सपीरियंस से और खुद प्रैक्टिस करके, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. और यहाँ तक ऐसा लगेगा कि थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कवर करूंगा और फिर आपको ये बताऊंगा कि रोजमर्रा के लेवल पे, डेली लेवल पे हम कैसे प्लान क्रिएट करें जिससे कि हम इमोशनली और मेंटली बहुत हेल्दी रहें. और उसके बाद एक क्विज भी होगा. ओके, सो आप सब लोग तैयार रहें क्विज के लिए. Excuse me, sir, your slide is not available. You are not seeing my slide? You are not seeing my slide? Your slides are visible. You are not seeing my slide? Your slides are visible, sir. Okay, so I heard Dr. Preeti say. So it is seen. Okay, all right. So let me know if you are not able to see my slide, and I believe you are seeing my slide. That's what is shown here on my computer. Okay. So little bit about me. So मैं मेरठ में पैदा हुआ, मथुरा से बहुत दूर नहीं है मेरठ. मेरठ में पैदा हुआ. मेरी एजुकेशन सारी मेरठ की है, कुछ दिल्ली की है. उसके बाद मैंने करीब 18 साल दिल्ली और हैदराबाद में काम किया डिफरेंट कंपनीज में. उसके बाद 1998 में मेरे को यहाँ यूएस की एक कंपनी ने जॉब ऑफर दिया, तो मैं यहाँ आ गया और यहाँ मैंने 12-13 साल उस कंपनी में काम किया. उसके बाद 8 साढ़े 8 साल पहले मैंने अपनी कंपनी लॉन्च करी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग की कंपनी लॉन्च करी. और हम लोग मैनेजमेंट कंसल्टिंग और ट्रेनिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी प्रोजेक्ट डिलीवरी इंप्रूव हो सके. सो लेट्स गो अहेड एंड मूव फॉरवर्ड. इज एवरीबॉडी एबल टू हियर मी वेल एंड सी माय स्क्रीन? एक बार कंफर्म करें. Yes, sir, you are audible and your screen is visible also.
वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सो कॉन्टेक्ट सेटिंग के लिए मैंने जैसे बोला था कि मैं काफी कन्वर्सेशन करता हूँ, काफी इंटरेक्शन करता हूँ, तो अगर हम एक रूम में बैठे होते तो बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन हो जाता, लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी को यूज करके कन्वर्सेशन करेंगे। तो आप सब लोग अपना सेल फोन, टैबलेट या जिस तरह भी इंटरनेट पे जा सकते हैं। आप, ये वेबसाइट है www.menti.com, आप यहां चले जाइए, www.menti.com, यहां से कुछ कन्वर्सेशन हम लोग शुरू करेंगे। सो आप कोई भी तरीका यूज कर, है। हाँ जी, menti.com। हाँ जी, menti.com, वहां एक कोड पूछेगा आपसे, वो कोड यहाँ लिखा है ऊपर, 826199. Yeah, people have started responding. Okay, good. So what is your biggest worry due to COVID? இதுல போங்கிறோம் மென்டல், என்னோட போன் அங்க இருக்குல்ல. Very good. Frustration, my girl employment. Due to COVID, frustration. Unemployment. So मैं थोड़ा समय दूंगा, सब लोग आ रहे हैं, 8 लोग करीब आ चुके हैं इसमें। वेरी गुड। बिगेस्ट वरी, हाँ, स्टूडेंट्स हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो போடுங்கறியா நீ? டாட் ஒன்ல किसी भी माध्यम से, जो भी आपके पास सेल फोन, कंप्यूटर, लैप, ये आईपैड, कुछ भी है, ஐபேட் Mentimeter ना अंदर, not Mentimeter, menti.com, not है ना? Mentimeter, menti.com, .com। हाँ जी, menti.com. Very good. Unemployment seems to be the biggest worry for a lot of you, and that's very understandable. That's very understandable. आप लोग अपना एजुकेशन पूरा करने वाले होंगे अभी, तो शायद सेशन खत्म हो गया होगा, खत्म होने वाला होगा, जैसा भी होगा। So that menti.com, not Mentimeter, menti.com. After it goes to Mentimeter. Mentimeter में जाता है। नहीं, Mentimeter नहीं, menti.com. Mentimeter में नहीं जाएगा। Menti.com, but it goes to Mentimeter. So can we put this code and see what you have shown here? It's 826199. Put the code. Double 9. हाँ जी। Right. Sorry, due to COVID. Yeah, correct. Okay, good. हाँ, वो ऊपर Mentimeter लिखा हुआ दिखा रहा होगा। राइट। हाँ, ठीक है। ओके, गुड। सो करीब 50 लोगों ने अब तक अपना इनपुट दिया है। Even I'm supposed to say, what is my problem? Yeah, what is your biggest worry due to COVID? My worry is, when will I come to Mathura? So your worry is to see people in person, right? In person. So I have to come to Mathura. I'm not allowed to come because I'm unable to. Though my heart is there. My heart is fully in Mathura. Yeah. Right. We understand that. Very good. But I'm unable to come. Very when good. will I come? So, I'm very eager to come. Yeah. So And unemployment. we are eager to see you, ma'am. Yeah. Yes. Unemployment, money, health,
So, and unemployment seems to be the biggest worry for all of the students. I think that's very, very understandable. Let's get on to the next one here. So, how this worry is impacting you? How worry is impacting you? Do you feel stressed? So there is a slider you will see on 3 sliders, and you can go. Yeah. If you disagree, you stay on the left. If you agree, then you go on the right. Yes, exactly. Yeah. Go on the, I feel stressed. It has started impacting my behavior, because when you are stressed, then you may feel angry, you may feel frustrated, you may feel unhappy, things like that, and many times you may need help. No? Yeah, So, very happy. Good. Okay. Very content and happy, Very and good. using my time very well. Excellent. Excellent. We never had a time like this for Yeah. for yourself, which I am able to experience. Yeah. Okay. Yeah. So so there is it's understandable. It's understandable. Okay. So what are you doing to manage this? All What the I'm doing. what are you doing to manage this? So there is You're asking questions to others, but I am interested in telling about myself. How we manage. That's all right. That's all right. Yoga, playing games, preparing for the exam, meditation. Physical fitness, lot of exercise you are able to do. Yeah. Lot of meditation you're able to do, Very at this good. time. Very good. Lot of healing I'm able to give to the entire world. Very good. Yeah. Yeah. Mhm. Very good. Very good. Excellent. Yeah. Now you are getting used to this. So by the time we reach to quiz, you will become a kind of expert in this, right? So we'll see that. We'll see that. Okay. Okay. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Yeah. So you can keep sharing that. And let me go back. So this is good. This is good. So let me go back to my slide. So back to my slide. So we know about now, all of us here hear a lot of things, and we are keeping physically, we know how to keep physically fit, how to avoid the infection. Wearing mask, we saw a lot of effort by Dr. Preeti Johari and her students and staff and everybody preparing masks. We know that we have to wash hands frequently. We know we have to eat healthy. We have to do social distancing and all those kind of things, preventive measures, because there is no treatment for it. So as of now, treatment will come someday. It will come. So it's not going to be like this. But we know we are learning, and we know how to stay physically healthy. And in fact, actually, I personally feel that my health has become better in last 3-4 months. Exactly. So in this last few months. Yeah. I used Health to has improved a lot. Weight Yeah. has come down because you're not eating any rubbish food. Yeah. Home food we are eating. Yes. So we are much better. Yeah. And I used to travel a lot, so I'm not traveling, because when you travel, then your schedule is disturbed, and you eat whatever you get, or things like Yes. that. So I am also feeling the same. Yeah. So Staying at home is a boon for me. Yeah, that's right. So that all part For is me good. too. That all part is good, but also, as Himaji was mentioning, that there's a lot of we have seen cleaning up of our environment. Ganga has become very clean. The pollution level has gone down, and we can see the renewal of the Mother Nature kind of thing because
all of us are inside, right? So that is all good thing. At the same time, what is happening that our emotional environment is getting polluted. So we hear a lot of new every day, every hour we hear news, so many new cases. The infection is on a rise in this part of the world, this part of now. New York has become Italy and all those kind of things. We hear all of that. And I can tell you that I'm staying in the eastern part of the country here in the United States. And I used to get calls from my families and friends in India. How you guys are doing? We hear a lot of things about how bad things are in New York, and there are not enough beds, there is not enough ventilators, and all those kind. We hear it, a lot of it, right? And that creates a kind of emotional disturbance. So I call that's like a polluting emotional environment around us, and that creates stress, that create anxiety, and all those kind of mental issues. And we are not used to staying at home. We are used to go out, right? But now we are locked in home, and because of that, there are maybe boredom. Don't know what to do. You cannot just keep watching TV all day, right? So because of that, the other kind of issues are emerging. How do we deal with those? What do we do to deal with those? And this is what this webinar is about. So I'm going to talk about 5-point strategy. So I'm going to talk about 5-point strategy that you can adopt. I have adopted this, and I have delivered this webinar to the professionals a couple of weeks ago, and they all liked it a lot, because I'm not just telling them things here and there, but I'm telling them in a very structured manner, what you should do to keep yourself emotionally and mentally healthy. And this is my 5-point strategy that you'll see here, you're seeing here. And we'll talk about all of this. We heard about, Hemaji talking about meditation, yoga. Great. I think that's wonderful. And that's my number one here, right? That's my number one here. And I will talk to you not only what you do, but when you do during the day, how much you should do or how much you should not do. So there are some of the practical aspects that I will cover during this webinar over here. So let's start talking about each one of them. हर एक के बारे में थोड़ा और deeper dive लेते हैं, थोड़ा और detail में जाते हैं हर एक के बारे में. Okay, so before we go there, let's look at how the things are processed in our brain. What happens, तो अगर हम इसको कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे तो जो मैं आगे कहने जा रहा हूं वो बहुत आसान हो जाएगा. Okay, that will be very easy. So let's start with some thoughts come in mind. That's how the things start, right? A thought comes in the mind, like, okay, I passed the exam, right? ऐसा दिमाग में विचार आया, वहां से शुरू होता है. विचार से शुरू होता है. हमारा दिमाग में हजारों विचार आते हैं सारे दिन. Somewhere I heard 40,000 thoughts you get in a day. Okay, so हमारा दिमाग जो है एक विचार बनाने की फैक्ट्री है. So thoughts आते हैं, thought आया, I passed the exam. Okay, now उससे क्या होगा? That leads to feeling. Exam pass हुआ, खुशी हुई, right? And you get different kind of feelings. You can get angry, with some thought you get angry, with some thought you get happy, some thought you get sad. Corona has come, so you get sad, you get sometimes you get angry, why this has happened, things like that. So जो thought होते हैं उनसे feelings create होती हैं, और उन feelings से action create होता है. So अभी तक दिमाग में चल रहा था feeling, लेकिन उसके बाद फिर action create होता है उससे. So अगर happy है, so I want to jump with joy, right? Because I'm so happy, right? Or I'm so sad, or whatever that is. I am so sad, so I want to cry, right? So
उन फीलिंग से एक्शन क्रिएट होता है और इन एक्शन से फिर बिहेवियर बनता है। जब ये रिपीटेड एक्शंस होते हैं तो उनसे बिहेवियर बनता है। तो हम किसी आदमी को मिलते हैं उससे, अरे यार ये बहुत खुश मिजाज इंसान है, हैप्पी पर्सन। क्यों? क्योंकि वो हैप्पीनेस का एक्शन जो है वो बार बार दिखाता है और दिखता है उसमें, हैप्पी पर्सन है। सो थॉट से शुरू होता है, थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एक्शन, एक्शन से बिहेवियर। लेकिन ये थॉट कैसे आता है? ये जो थॉट आता कहां से है, राइट? सो इसको समझ लें कि थॉट आता है जो भी हमारे एनवायरनमेंट में हम सुनते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम एब्जॉर्ब करते हैं बाहर से। और बहुत सारे तरीके हैं इंफॉर्मेशन के लिए, आप सबको पता है, टीवी में है, आप पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, गूगल है, किसी से मिलते हैं, बात करते हैं। सो बहुत तरीके हैं जिससे आपके पास इंफॉर्मेशन आती है और उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे थॉट्स क्रिएट होते हैं। सो इंफॉर्मेशन इज लाइक फूड फॉर थॉट, अगर आपने सुना हो। सो इंफॉर्मेशन इज लाइक फूड फॉर थॉट। सो जो हम फूड खाते हैं दैट इज फूड फॉर आवर फिजिकल वेलबींग, राइट? अगर हम बहुत मसाले, मिर्च, तेल और सब खाएंगे तो हमारे हेल्थ पे इंपैक्ट आएगा, राइट? वी ऑल नो दैट। अगर हम हेल्दी खाएंगे तो हमारा शरीर हेल्दी होगा। इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम करते हैं, वो इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, उस तरह से हमारे थॉट्स बनते हैं। सो उसका जो सोर्स है, ये सोर्स इंफॉर्मेशन है इन थॉट्स का। तो हम ये भी कहते हैं कि जो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो हम आसपास सुनते हैं, देखते हैं, उसके बेसिस पे ही हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं, उसके बेसिस पे ही हमारी फीलिंग क्रिएट होती है, उसके बेसिस पे ही हमारे एक्शन क्रिएट होते हैं और उसके बेसिस पे ही हमारा बिहेवियर क्रिएट होता है। सो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये दिमाग के अंदर, दिमाग एक बहुत ही बढ़िया चीज है। इट्स ए अमेजिंग थिंग, इट्स ए अमेजिंग थिंग व्हाट गोज इनसाइड। सो दैट इज हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स, ओके? और आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप वो चैट बॉक्स है उसमें आप क्वेश्चंस डालते रहें, मैं बाद में क्वेश्चंस एड्रेस करूंगा, बीच में पॉज भी कर सकता हूं तो तब एड्रेस करूंगा, ओके? सो इसको ध्यान में रखते हुए नाउ लेट्स गो बैक टू आवर 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी जो मैंने दिखाई थी। उसका पहला जो पॉइंट है, वो पहला पॉइंट है प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, वेरी फर्स्ट थिंग, and that should be done at least for an hour, at least an hour every day. Yoga क्या करता है, प्राणायाम क्या करता है? 6 to 7 in the morning. So yeah, that's right. So increased awareness, ये अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आप इंटरनली फोकस्ड हो जाते हो। जैसे आप प्राणायाम करते हो तो आपका फोकस आपके सांसों पे रहता है। आप योगा करते हो तो आपका जो ध्यान है वो अपने पे रहता है। इट क्रिएट्स इट सेल्फ अवेयरनेस एंड इट क्लियर्स अप इमोशनल पोल्यूशन। इस तरह से जैसे आप ये समझो कि आप अगर इनवर्ड हो गए तो आपने अपनी तरफ एक तरह से अपने चारों तरफ एक कवच सा तैयार कर लिया, राइट? ए शील्ड काइंड ऑफ ए थिंग, एंड यू गेट शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, whatever is happening is outside, right? All that disturbing information, all those kind of things that are around you, they don't come Complete inside. aura. The Yes, aura has to be cleansed. yes, that's right, that's right. The aura And cleansing is so important, so yes, that nothing comes inside you. very good, yes. And जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा ऑरा बढ़ जाता है, ऐसा कहते हैं, right? बढ़ेगा। हाँ, जितना ज्यादा करते कोरोना हैं पास में आएगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? आप फिजिकली तो सब कुछ कर रहे हो ना, आप मास्क लगा रहे हो, Yes. आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो आप, तो उससे आने के बहुत कम, और आएगा भी तो क्या है, चला जाएगा। सो आएगा तो आपने आपको स्ट्रांग रखो फिजिकली और इमोशनली, चला जाएगा। अगर आएगा भी तो आएगा, जुकाम, सर्दी, खांसी होगा, चला जाएगा 2-4-5 दिन। बिल्कुल। और आज एक और चीज मुझे बोलना था, क्योंकि सब आज टेलीविजन में जो दिखाते हैं कि यहाँ पे इतने लोगों को कोरोना हो गया, इतने लोग मर गए हैं, यू नो, बिकॉज ऑफ दिस, ये ज्यादा दिखाते जा रहे हैं। लेकिन एक ये जो पॉजिटिव नोट, जो कितने लोग ठीक होके बाहर आ गए हैं, आ चुके हैं, उनका एक भी इंटरव्यू नहीं आता है।
बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत जरूरी है, बिल्कुल। हमारे आम जनता को मालूम होना चाहिए कि हाँ जो ठीक हो कि जो इतने लोग आ गए हैं, लाखों लोग आ गए हैं, वो कैसे है ना, हाँ उनको हाँ क्या हाँ, हुआ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने एक रिसेंटली हमारी बेटी जो है ईशा देओल, उसकी जो फ्रेंड है, उसकी मम्मी डैडी दोनों को कोरोना हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो मैं बहुत परेशान हो गई। दे आर ऑल ऑफ माय एज, above 60s and 70s, like that, you know. So got very worried ki how what is happening to them. I was very inquisitive to know, and then I kept inquiring, and then they are very successfully, very nicely, they have come out of it. So I inquired, I asked her what happened. She said, no, nothing, absolutely, I'm fine. And then कुछ नहीं हुआ, मैं तो आ गई हूँ, उसको कोरोना हाँ हुआ, आ भी गए हैं। तो ये फिर एक हमें हिम्मत देती है कि हाँ कोरोना हाँ अगर हमें भी आएगा तो हम भी आ सकते हैं हाँ, बाहर। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि डर के मारे बैठने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्राणायाम योगा मेडिटेशन करने से ये मेंटल शक्ति आती है। शक्ति स्वामी। सो और अगर मैं 1 घंटा करने को बोल रहा हूं तो कितना है, 4% ऑफ योर डेली टाइम। थिंक Exactly. अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट। 1/24, राइट, 1/24, 5% भी आपका टाइम नहीं है। थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट। और 1 घंटा कहाँ निकल जाता है पता नहीं लगेगा, आप जब नहीं, करना नहीं, शुरू करो। लेकर आता हूँ, उसका टाइम थोड़ा सा हाँ, आगे कर देना, आपको वो शेड्यूल तो मिला ही होगा। ओके। एंड हाँ, बेस्ट टाइम, 35 लगभग। अच्छा अब वो और जो अपना कन्वर्सेशन कर रहे हैं प्लीज उसको अगर म्यूट कर लें आप। तो वो आप थोड़ा हेलो, कोई अपना कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसको म्यूट कर लें अगर इससे संबंध बात नहीं कर रहे हैं तो। बेस्ट टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। वर्स्ट टाइम कभी नहीं, कभी भी कर लें, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब मैं ऐसा करूंगा कि सारे ऑडियंस जो भी हैं सबको 1 मिनट बिल्कुल साइलेंस, और फोकस करें अपने क्या विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा टाइमर, मैं फोन में टाइमर लगाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, और जब मैं बोलूं कि मैं स्टार्ट कर दिया तो आप 1 मिनट के लिए एकदम साइलेंट होकर के आंख बंद करके और ये देखें, ऑब्जर्व करें अपने दिमाग में कि क्या विचार आ रहे हैं, ठीक है। सो अब मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, 1 मिनट स्टार्ट हो रहा है अब। अभी 1 मिनट हुआ नहीं, जल्दी आ गए। मैं बताऊंगा अभी 1 मिनट कब होगा। ओके, 1 मिनट ऊपर हो गया। अब आप मेंटी में जाएं और बताएं किस तरह के विचार आए। ब्लैंक, yeah, sometime when you start thinking about, you go blank. Yeah, which is natural, and that maybe happen for some people when they start, keeping yourself silent. Peace, no thoughts, that is same as blank. Feeling hungry, हाँ, शाम को 6 बज रहे हैं। आपके, मेरे सुबह के 8:30 बजे है। Oh. हाँ, और जब 1 मिनट आपने आंख बंद करके जब अपने विचारों के बारे पे ध्यान देना शुरू करा तो अवेयरनेस आया कि मेरे विचार क्या आ रहा है मेरे दिमाग में, और उस 1 मिनट में आपने बाहर का कुछ नहीं सोचा, राइट।
उस 1 मिनट में आप इंटरनली फोकस्ड हो गए, और वो इंटरनल फोकस होने से धीरे धीरे आप जिस बारे में भी सोचना चाहते हैं वो आप उस बारे में सोचें, और धीरे धीरे उसकी और प्रैक्टिस करें। जो योगा मेडिटेशन गुरुज हैं उनसे शिक्षा लें, उनसे बात करें कि कैसे करें, और इससे आप इंटरनली आपका फोकस इंटरनली हो जाएगा, तो बाहर जो इंफॉर्मेशन चल रही है वो चल रही है, right? वो चल रही है, तो उससे बहुत 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 हेल्प मिलेगी अपने को इमोशनली मेंटली स्ट्रांग रखने में। सो पहला पॉइंट और पहला स्ट्रेटजी प्राणायाम होगा एटलीस्ट एन आवर। ओके, नाउ अब हम दूसरे पे चलते हैं। ये हम इंटरनल फोकस्ड हो गए, राइट? लेकिन बाहर का वर्ल्ड तो चल रहा है ना, बाहर का वर्ल्ड तो चल रहा है, न्यूज का बम्बार्डमेंट चल रहा है, सारे दिन चल रहा है, वो तो सब दिन चल रहा है, राइट? सो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप न्यूज का जो इनटेक है उसको लिमिट कर दें, नो मोर देन 30 मिनट्स ए डे। बंद ही कर देना चाहिए। बंद करके तो थोड़ा मतलब जिज्ञासा रहती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो इट्स ओके, इट्स ओके। You only get to hear negative things and also so WhatsApp, yes, absolutely. तो अगर आपको अप टू डेट भी रखना है अपने को, तो 15-20 मिनट 30 मिनट से ज्यादा की जरूरत नहीं है। दिन भर में कुछ चेंज होता नहीं है इससे ज्यादा। अगर आपने एक बार सुन लिया, उससे ज्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। अगर आप देखोगे टीवी में भी वो सेम न्यूज ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड अगेन, सब सेम रिपीट होती है। उनके पास भी कुछ नहीं है, they don't also अपना चैनल चला रहे हैं वो लोग। हाँ, उनके पास चैनल कुछ नहीं है, चलाने के लिए दिखाते जा रहे हैं भयंकर चीजें, कुछ नहीं है, नथिंग। जो डर के कभी बाहर आएगा ही नहीं, कुछ नहीं है, नथिंग। तो अगर आप उसको सारे दिन देखते रहोगे तो वही सारे आपका इंफॉर्मेशन आ रहा है आपके अंदर, राइट? और उसी तरह के फिर थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, उसी तरह के फिर फीलिंग्स क्रिएट हो रहे हैं, उसी तरह के एक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, राइट? वही सारा दिन हो रहा है। मैं सुनता हूँ कभी कभी कि घरों में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, तो सो बिकॉज इट विल इंक्रीज एंजाइटी। जब भी नेगेटिव न्यूज आती है तो एंजाइटी, स्ट्रेस होता है। सो आप देखो न्यूज, लेकिन उसको बहुत लिमिट कर दो, 10 मिनट 15 मिनट, एट द मोस्ट 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। और वो सुनो भी कब? उसका बेस्ट टाइम है इवनिंग्स, आफ्टर योर डे इज ओवर, राइट? नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज आपने अगर अर्ली इन द मॉर्निंग सुना तो आपका सारा दिन खराब हो जाएगा, सारा दिन गया। और लेट नाइट में भी नहीं सुनना है, सोने से पहले, नहीं तो सारी रात खराब। अगर सुबह सुना तो सारा दिन खराब, रात को सुना तो पूरी रात खराब। नींद नहीं आई। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जो आपने सोने से जस्ट पहले सुना या देखा या बात किया, वो आपके जो माइंड में चलता रहता है, वो चलता रहता है, राइट? सो इसलिए न्यूज जो है, जो कि ऑलमोस्ट 90-95% नेगेटिव है, उस न्यूज को अगर आप अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट सुनेंगे तो दैट्स नॉट वेरी गुड। एंड सो बेस्ट टाइम है कि आप इवनिंग में उसको सुने, 5-6 बजे। मैं बोलूं एक चीज, सॉरी इफ यू डोंट माइंड। हाँ, नहीं, बोलिए। मैं ये कहूंगी और मैं ये प्रैक्टिस भी करती हूँ कि एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स व्हेन यू आर डूइंग मेडिटेशन, think very positive and then feel that all this corona, all these things, everything is gone and we are coming to a new world and with lot of positivity, with the better things we are living. ये thought process continuous रखेंगे ना तो ये सब अपने आप चला भी जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, एकदम ठीक कह रही हैं। Okay, so let me go back to Menti and ask you another question. How much news do you watch or listen every day? So उसमें 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है सही जवाब देना, बना के नहीं। आपका नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे किसी का।
सब देख रहे होंगे ना टीवी के डरा के बैठा है। हाँ। So glad to see कि करीब 70% लोग लेस देन 30 मिनट्स देख रहे हैं। बहुत अच्छा है अगर ऐसा आप कर रहे हैं, सो दैट्स रियली वेरी वेरी गुड। अगर आप बहुत अच्छा। लेस देन 30 मिनट्स देख रहे हैं, कुछ लोग हैं 2 से 4 घंटे देख रहे हैं, तो उनको अपना कम करना है। जो 2 से 4 घंटे देख रहे हैं उनको, अगर आप 4 घंटे देख रहे हैं तो अपने आप 3.5 घंटे आप समझिए वेस्ट कर रहे हैं, और एक्चुअली नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है आपको। So उसको आप रिड्यूस करें, 30 to 60 minutes is also very a lot. So less than 30 minutes. Okay, so let's go to the next one. The next is listen to inspire your funny content. That's very very important. Like आप कुछ तो करोगे, कुछ तो सुनोगे, कुछ तो देखोगे, right? लेकिन आप न्यूज देखने की जगह आप ऐसा चीज देखो जो कि इंस्पायरिंग है, जिससे कि आपको प्रेरणा मिलती है, या फिर जो कि हिलेरियस है, फनी है, जिससे आप Best हंसते thing हैं। is to spend time with the children, small children, or with the Yeah. pets. Yeah, that's another one. And ये कितना आप देखो और सुनो, इंस्पायरिंग और फनी, जितना चाहे देखो, इसकी कोई लिमिट नहीं है जी, क्योंकि ये क्या अपलिफ्ट करता है मूड को, अपलिफ्ट करता है इमोशंस को, अच्छे इमोशंस को, यू फील हैप्पी, राइट, यू फील जॉय, Creativity. या Creativity. यस, इट डेवलप्स। तो आप इंस्पायर, अगर किसी चीज से इंस्पायर होते हैं तो आपका मन करता है आप भी कुछ वैसा करो, राइट, या सो वो एक जो फीलिंग होती है कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, हाँ, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका टाइम कब है? कभी भी बेस्ट टाइम, कभी भी जब आप ऐसा इंस्पायरिंग कंटेंट और फनी कंटेंट देखना चाहो, कभी भी देखो आप, ओके? उसका कोई गलत या कोई सही समय नहीं है, वर्स्ट टाइम कोई वर्स्ट टाइम नहीं है, बेस्ट टाइम एनी टाइम। सो कभी भी देखो। सो आप लोगों में से अगर आप इंस्पायरिंग और फनी कंटेंट देखते हैं तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? व्हाट काइंड ऑफ इंस्पायरिंग और फनी कंटेंट डू यू वॉच? आजकल लोग सोशल मीडिया पे भी बहुत देखते हैं, आप आजकल movies, okay, comedy show, okay, so some people are saying nothing, so they have to change. कुछ इंस्पायरिंग कंटेंट देखो, कुछ फनी कंटेंट देखो, नथिंग मत देखो। हाँ, नथिंग क्या होता है? नथिंग क्या होता है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके। And movies like Sita and Geeta. हाँ, बिल्कुल। Light-hearted movies, yes. Yes. Some creative work they can do, na? Creative work. हाँ. Something nice, which you'll feel happy. Music, dance. Yeah, funny videos. Yes. Yeah. So those are the contents that you should watch, and whenever you have nothing much important to do, then do this, because that's going to uplift. That's going to uplift your mood. That's going to uplift your emotions, and you feel very joyful, right? Kapil Sharma show, very good. Yeah, I also Yes. watch them. Yeah, and normally I watch that when we are having dinner with the family. So जब भी आप, मेरा कुछ ऐसा सोचना है कि जब आप डिनर कर रहे हैं उस समय आप ऐसा कंटेंट नहीं देखें जिससे स्ट्रेस या एंजाइटी क्रिएट हो। सो अगर ऐसा लाइट कंटेंट कुछ देखेंगे, आई थिंक दैट विल बी वेरी यूजफुल। So very good. I'm seeing a lot of people participating. That's excellent. So that is what is required to do certain things, not do certain things. Okay, let's move on to the next one. So ये सब हो गया, लेकिन आपके पास तो सारा समय है, majority of your day. आप सब students हैं, right? So what should you do? So I will say focus on study or career prospect, right?
आप लोगों ने बोला कि आपका सबसे बड़ा इशू अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट? दैट इज व्हाट यू वरी मोस्ट. Excuse me, just a minute. Sorry to interrupt. I think our chief guest wants to take leave. Okay. I have some. So, See you some other time. thank you, ma'am. Achi, thank you. Thank you. Yes, thank you Radhe. for being with us for such a Yes. long time. Thank you. And I hope to see you soon in Mathura. Thank you, ma'am. Yes. Thank you very much. Okay. Thank you. Nice meeting with you. Okay. Okay. Nice. Yeah. Now you can continue. Okay. So fourth, सबसे important students के लिए focus on study और career prospect. कम से कम 6 से 8 घंटे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है. अभी आपके सबके एग्जाम नहीं हुए होंगे अभी. अभी कभी भी आएगा कि इस समय एग्जाम होंगे. हो सकता है 1 महीने में, हो सकता हो अगस्त में, हो सकता है, पर होंगे, कभी ना कभी तो होंगे, राइट? तो कम से कम 6 से 8 घंटे पर डे यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए. आजकल आप घर में हो, नहीं जा पा रहे हो, लाइब्रेरी में नहीं जा पा रहे हो, कॉलेज में नहीं जा पा रहे हो, तो ऑनलाइन लर्निंग, बहुत सारी ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं. आप वहां जाके ऑनलाइन लर्न कर सकते हो. आपके पास जो ऑलरेडी स्किल्स हैं आप उनको और अच्छा कर सकते हो, राइट? और जो नॉलेज है आपके पास उसको आप और अच्छा कर सकते हो. आप नए स्किल्स लर्न कर सकते हो. जो आपका सब्जेक्ट है, राइट? किसी को अगर साइंस में इंटरेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो बहुत ऑनलाइन कंटेंट है आजकल, बहुत यूट्यूब में बहुत कंटेंट है. आप अगर आर्ट्स में हो, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, और जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप उसमें बहुत स्टडी कर सकते हो. ये बहुत अच्छा टाइम है जब आप उसमें बहुत स्टडी कर सकते हो. आप मे बी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो आगे आपको कंप्लीट करने के बाद. और कुछ समय, 1-8 घंटा कुछ क्रिएटिव वर्क में लगाना चाहिए, आर्ट वर्क में लगाना चाहिए. एंड वी विल टॉक अबाउट दैट क्रिएटिव एंड आर्ट वर्क. ठीक है, क्या कर सकते हैं. इसका बेस्ट टाइम कब है? मेजॉरिटी ऑफ द डे, 8-9 बजे से शाम को 5-6 बजे तक, 8-10 घंटे जो आपके पास होते हैं मोस्ट ऑफ द डे, राइट? वर्स्ट टाइम कोई भी नहीं है. उस समय सारे दिन आप अपने पे फोकस, स्टडी पे फोकस और कैरियर प्रोस्पेक्ट पे आप फोकस कर सकते हो. सो मैं ये जानना चाहता हूँ, लेट्स सी, गो टू आवर फेवरेट वन, मेंटी. आप सारे दिन क्या करते हैं? व्हाट डू यू मोस्टली डू ड्यूरिंग द डे? आपको 3 चॉइसेस हैं, 6 में से 3 पिक करनी है. व्हाट डू यू मोस्टली डू ड्यूरिंग द डे? So that is very good, very good. Yeah. Learn new skills, very good. काफी लोग, 25% लोग learn new skills भी कर रहे हैं. बहुत बढ़िया. Social media, watch movies, okay. Wow, learn new skills में काफी लोग, so that's the winner kind of a thing. So इसको देख के आप पैटर्न समझिए कि आपको क्या पूरे दिन करना चाहिए, कहाँ आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए. इन 6 चीजों के अलावा और भी हो सकते हैं कुछ, राइट? You can have some more, but I'm glad to see that बहुत सारे लोग न्यू स्किल लर्न करने में अपना समय लगा रहे हैं, स्टडी में अपना समय लगा रहे हैं, पेरेंट्स को हेल्प करने में अपना समय लगा रहे हैं. Those are the kind of 3 top most here. और ठीक है, थोड़ा बहुत टीवी भी देख लिया, लेकिन टीवी में याद रखना, कंटेंट शुड बी इंस्पायरिंग और फनी. That's what you should be watching. That is going to help you a lot. And कुछ लोग कह रहे हैं कि खास कुछ नहीं कर रहे हैं, तो I think this part has to go away. They have to move this time that they are spending here to maybe the ones that are top here, top 3. Okay, all right, let's go back. 5वां, social media. Use social media to stay connected. That's the whole purpose of social media. Connect with family and friends.
यूज एट सोशल मीडिया, हम सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से यूज करने का है। नो गॉसिप। गॉसिप का मतलब है किसी ने कोई पोस्ट भेजा, आगे फॉरवर्ड कर दिया बिना सोचे, या कहीं से कुछ मिर्च मसाले जैसी चीज मिली, आगे फॉरवर्ड कर दिया। सो दैट इज ऑल कॉल्ड एज गॉसिप। नाउ सो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, अपने फैमिली से बात करें, वीडियो कॉल करें, मल्टीपल लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं आजकल। सो सब अपने अपने घरों में आजकल एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। सो आप सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं अपने को कनेक्ट करके रखने के साथ। एंड जूम या कैसी चीज पे आप लोग एक साथ कुछ इवेंट भी कर सकते हैं, राइट? वो भी कर सकते हैं। इसका बेस्ट टाइम क्या है? इसका बेस्ट टाइम है इवनिंग्स में, not in the mornings, not in the daytime, right? In the evening, 6 to 10 p.m. बाकी सब लोग भी बिजी हैं सुबह और सारे दिन। बेस्ट टाइम है इवनिंग्स में, 6 से 10 के बीच में। वर्स्ट टाइम है मॉर्निंग्स। मॉर्निंग्स को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, सबको अपना अपना दिनचर्या करनी है। तो मॉर्निंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। बेस्ट टाइम to do this is in the evening, 6 to 10 p.m. So let's see, how do you spend your social media time? How do you use social media time most frequently? Very good. अधिकतर लोग नई चीजें सीखने में, फैमिलीज के साथ कनेक्ट करने में ये तो बहुत अच्छी पिक्चर है, मुझे ऐसा नहीं लगता था, बट दैट्स वेरी गुड। अगर आप सब स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो भी अब क्या कर रहा है? अब दिखा रहा है शेयर में बैठ के। हाँ, क्या कर रहा है? ओके, ऑल राइट, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो ये 5 स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई। तो इन 5 स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो करना है और इनको कैसे अपने स्केड्यूल में लाएं, डेली में लाएं, बिकॉज ये सब बात तो हो गई कि क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सब हो गया, राइट? लेकिन इन सब को हम अपने डेली स्केड्यूल में कैसे फिट करें, कैसे लाएं? सो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये मेरा अपना स्केड्यूल है जो कि मैं वीकडे में फॉलो करता हूं, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे ये मेरा अपना स्केड्यूल है। करीब सुबह 5:30 उठता हूं, प्राणायाम करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, वॉक करता हूं। फिर जो सारा बात का 8 से 6 बजे तक का ऑलमोस्ट 10 घंटे का टाइम है, वो मेरा ऑफिस वर्क है। ऑफ कोर्स बीच में ब्रेक लेता हूँ, लंच करता हूँ, चाय पीता हूँ, करता हूँ, ब्रेक लेता हूँ। लगातार काम 10 घंटे नहीं करता हूँ, कर भी नहीं सकता कोई। और उसके बाद मेरा न्यूज का टाइम है शाम को 6 से 6:30 करीब। मैं न्यूज देखता हूँ, अपने आप को अपडेट करता हूँ। उसके बाद डिनर का टाइम है। फिर देन मैं थोड़ा समय अपने बेटे के साथ बिताता हूँ 8 से 8:30 बजे। और फिर वॉक। और ये जो नाइट का वॉक है, ये हम पूरी फैमिली मिलके करते हैं इकट्ठा। हम चारों लोग, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, सब मिलके आधा घंटा हम लोग वॉक के लिए निकलते हैं रात को 8:30 से 9 के बीच में। और उसके बाद अगर हमको रिमोट फैमिली फ्रेंड से बात करनी है तो देन दैट्स द टाइम, 9 to 10 PM। उसके बाद आधा घंटा करीब नेक्स्ट डे के लिए, और फिर सो जाना 10:30 बजे। सो ये मेरा लगभग ये रूटीन में मंडे टू फ्राइडे फॉलो करता हूँ। वीकेंड मेरा रिलैक्स होता है। एंड रिलैक्स में क्या है कि उसमें जो मेजर डिफरेंस होता है ये 10 घंटे का जो है ये यहाँ, बाकी ऑलमोस्ट वैसा ही फॉलो होता है। मे बी 5:30 की जगह 6 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन ऐसा ही फॉलो होता है। ये डिफरेंट होता है क्योंकि मैं ऑफिस का वर्क नॉर्मली
वीकेंड्स में नहीं करता। तो उसमें जो भी घर में करना हो, जैसे भी समय बिताना हो फैमिली के साथ, शॉपिंग करनी, आजकल तो शॉपिंग सब बंद पड़ी है, लेकिन ऑनलाइन करनी होती है, ऑर्डर करनी है ग्रोसरीज ऑनलाइन एंड ऑल दैट, सो वो सब। तो क्योंकि आप लोग ऑफिस का काम नहीं करते हैं, तो आपके लिए भी मैंने एक रिकमेंडेड स्केड्यूल बनाया हुआ है। ओके, सो ये मेरा रिकमेंडेशन है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, है ना। आप सब स्टूडेंट्स होते हैं 5:30 बजे उठ के क्या करूंगी, मैं करूंगा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 5:30 बजे उठें। नहीं उठ सकते हैं कोई बात नहीं है, 6 बजे उठे, 6:30 बजे, 7 बजे, कई स्टूडेंट्स 9 बजे तक उठते हैं, यू नो। सो लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जितना सुबह जल्दी से जल्दी उठ सकें उठें, और इस तरह का स्केड्यूल एक फॉलो करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें अगर आप देखें तो आपका सुबह ये एक स्टडी का ब्लॉक है, ये सुबह आपका फोकस प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, इन सब पे फोकस है। फिर ये आपका स्टडी का एक स्लॉट है 3 घंटे का। उसके बाद 12 बजे से 3.5 घंटे ये आपका फन का टाइम है, हॉबी रिलेटेड है, लंच करो, ब्रेक करो, हॉबी रिलेटेड कोई काम करो, न्यू स्किल डेवलप करो। तो ये 3-3.5 घंटे थोड़ा रिलैक्स टाइम, फन स्टफ है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे करीब 2 घंटे का स्टडी टाइम है। उसके बाद आप न्यूज सुन सकते हैं, तो 5:30 से 8:30, 9:30 ये आपका फिर से रिलैक्स टाइम है, राइट। इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर ये आपका 1 घंटा रात को और पढ़ने का है। सो इस तरह से अगर आप करेंगे, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे तो एक आपको सारे दिन करीब बिजी भी रखेगा, तो जो बाहर का इंफॉर्मेशन आ रहा है वो आपके पास नहीं आएगा, तो इमोशनल मेंटल डिस्टर्बेंस होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, राइट। तो अगर आप ऐसा कुछ स्केड्यूल बना लेते हैं, और वीकेंड, संडे, सैटरडे, संडे, यू कैन बी रिलैक्स्ड। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्विज खेलेंगे। एक आपने कितना मेरे को सुना, कितना अटेंटिवली सुना, कितना समझा, कोविड के बारे में आपको कितना ज्ञान है, और आपको कैसे मेंटली और इमोशनली हेल्दी रहना है। तो हम एक क्विज करेंगे, कि सब स्टूडेंट्स हैं आप, राइट। सो क्विज करेंगे। सो क्विज करने का तरीका क्या होगा, तो आप menti.com पे जाएंगे, अगर यहाँ पे, सो आपसे नाम पूछेगा अब ये, ठीक है। आप, हाँ, शाबाश, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। सो आपसे नाम पूछेगा, आप अपना नाम नहीं दोगे तो आपको अपने आप नाम दे देगा वो, ठीक है। तो आप सब लोग इससे जुड़े, मैं आपको दिखाता हूं कि ये हम क्विज कैसे खेलेंगे। ओके, ये एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग पार्ट होगा वेबिनार का। तो आप कैसे खेलेंगे क्विज को, सब अपना नाम एंटर कर देंगे, उसके बाद एक के बाद एक क्वेश्चन आएंगे, आपको हर क्वेश्चन का आंसर करना है। उसमें मल्टीपल चॉइस होगा, आपको एक चॉइस जो होगा वो ठीक आंसर होगा, और आपको बहुत तेजी से आंसर करना है। तो आप हर एक को स्कोर मिलेगा बेस्ड ऑन योर आंसर, और आंसर अगर राइट है तो ही स्कोर मिलेगा, अगर आंसर गलत है तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो गलत आंसर नहीं करना है, करेक्टनेस पे पहला फोकस है कि आंसर करेक्ट होना चाहिए, और दूसरा है फास्ट। ओके, सो जो कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, उसका फास्ट फिंगर जो राउंड होता है, इज समथिंग लाइक दैट। ओके, आपको राइट आंसर करना है और फास्ट आंसर करना है। उसके बाद जो टॉप 3 विनर होंगे, जिनके टॉप 3 स्कोर आएंगे, उनको मेरी तरफ से प्राइस है, और प्राइस नीचे लिखा हुआ है। अमेजन गिफ्ट कार्ड आपको मिलेगा, सो यू कैन बाई एनीथिंग। ऑनलाइन है, सो आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं जो मर्जी चाहे। ओके, सो उसमें आप कैसे करेंगे, जब आप क्विज खत्म होगा तो आपके स्क्रीन पे आएगा आपका कौन सा रैंक है, आर यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th, 20th, 50th, व्हाटएवर। तो आपको वो स्क्रीन पे दिखाएगा कि आपका, और अगर आप टॉप 3 में हैं तो आप अपने स्क्रीन का पिक्चर लें, और उस पिक्चर को लेके डॉक्टर प्रीति जौहरी को ईमेल कर दें। ये ईमेल है rcamtr@gmail.com, इसको नोट कर लें, ठीक है। इस ईमेल पे आप प्रीति जौहरी जी को मेल कर दें, और वो आपको ईमेल से आपका वो आएगा स्क्रीनशॉट, तो देखिए अच्छा ये फर्स्ट है, ओके, इसको मैं $25 का ये भेज दे रही हूँ। ये गिफ्ट कार्ड ऑलरेडी उनके पास पहुंच चुके हैं। ओके,
तो आप जो अपना ईमेल भेज देंगे तो आपको ईमेल से भेज देंगे वो, ओके, और आप जिस तरह से चाहे इस मनी को यूटिलाइज करें. So there is a price, okay? So you are shooting for top 3 positions, okay? So let's go ahead and go to menti.com. So करीब 60 लोग जुड़ चुके हैं. So let's start the quiz, okay? मैं 15 सेकंड और दूंगा किसी और को जुड़ना है तो, 15 सेकंड और दूंगा अगर किसी और को जुड़ना है तो, और सबके लिए वो कुछ सिंबल उसने कंप्यूटर ने दे दिया है. ओके, सो लेट मी स्टार्ट द क्विज. और हर क्वेश्चन का एक राइट आंसर है और कुछ टाइम एलोकेटेड है, शायद 15 सेकंड. ओके, मुझे याद नहीं है 15 सेकंड है या 20 सेकंड है, कुछ है. ओके, so let's start the quiz. I have about 70 people participating in the quiz, which is great. Okay, so let's start the quiz. Let me see if I on my other computer if you are seeing the same thing what I'm seeing. Okay, now let's start the quiz. So quiz starts now. Okay, people अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं वेट करता हूँ. अभी 77 लोग करीब जुड़ चुके हैं क्विज के लिए. 78, नवाज 79, अभी तक सिर्फ 60 लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, राइट? ओके, ओके, सो वी आर स्टार्टिंग नाउ. सो आंसर एज फास्ट एज पॉसिबल. पंद्रह सेकेंड है. Okay, so right answer is 6 feet. Okay, so all of you should know that this social distancing में distance is 6 feet, not 20 feet or 2 feet. Okay, जिन लोगों ने 20 feet or 2 feet दिया है, it could be दो गज हो सकता है, 2 feet नहीं है. Okay, next question. ये हाँ बताएगा किसने स्कोर किया सबसे ज्यादा. आस्था चौहान is the leader for now, okay? But हर क्वेश्चन के बाद ये बताएगा हम कहाँ पे हैं, okay? दूसरा क्वेश्चन अभी आने वाला है. How does COVID-19 spread? कैसे फैलता है COVID-19? Touching animals, उसके वायरस के पैर हैं, चला जाता है एक दूसरे से, एक के पास दूसरे, और ये वायर ड्रॉपलेट्स कैसे फैलता है. ओके, कोई लोगों ने बोला उसके पैर भी हैं. ओके, ऑल राइट, बट मोस्ट ऑफ यू आर राइट, मोस्ट ऑफ यू आर राइट. लेट्स सी कि अब आस्था चौहान अभी विनर रहती है कि कोई और आ जाता है. ओके, आस्था चौहान इज स्टिल लीडिंग. ओके, कुछ अल्टा पल्टी हो गई यहाँ पे. ओके, तीसरा क्वेश्चन. So COVID-19 is creating, so what it is creating? Physical sickness, mental sickness, both, or no sickness? What COVID-19 is doing? Very good. Yeah, it is creating both. It is creating both. Yes. Let's see how, who is still the winner. आस्था चौहान अभी भी आगे चल रही है, बहुत आगे चल रही है. गौरव और कृष्णा आगे आओ भाई. Okay. How much pranayama you guys should do? You should do every day. आज मैंने बोला है अभी अभी इसी वेबिनार में, ध्यान से सुना है तो जवाब दे दोगे. Yeah, 1 hour. Yes, 1 hour, at least 1 hour. That's the right answer. So let's see अभी किसने स्कोर ज्यादा बनाया. ओके, अभी भी आस्था चौहान लीड कर रही हैं.
हाउ मच न्यूज शुड यू वॉच एवरी डे, इसकी भी हमने बात करी थी अभी वेबिनार में ही, अगर ध्यान दिया हो तो। सो जो लोग वेबिनार में जागरूक थे who the people who were listening, yes, most of you have said it right. So let's say who did it fast. Okay, गौरव और आस्था में क्लोज कंपटीशन है, और मंजरी। What is the worst way to spend your lockdown time? Worst way, remember, right? Not the best way, the worst way. सबसे खराब क्या तरीका है अपना समय बिताने का लॉकडाउन में? या पेरेंट्स को हेल्प करना वर्स्ट चीज नहीं है किसी ने पेरेंट्स को हेल्प करना। ओके, लेट्स सी वेयर वी आर नाउ। ओके, टॉप 3 अभी टॉप 3 हैं। ओके, हाउ शुड यू यूटिलाइज सोशल मीडिया? सोशल मीडिया को कैसे यूज करें? ये भी हमने बात करी थी अभी, सोशल मीडिया को कैसे यूज करें। वेरी गुड, वेरी गुड। Okay, so Asta Chauhan is the winner, and then Dr. Gaurav and Ridhi Bharadwaj. So those are the 3 winners. And आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लेकर के, आपको स्क्रीन पे मिला होगा, आस्था चौहान को मिला होगा, you are the winner or you are the first. Dr. Gaurav will be the second, उनको स्क्रीन पे आया होगा कि you are the second. And रिधि भारद्वाज के स्क्रीन पे आया होगा you are third. So आप अपने स्क्रीनशॉट लेकर के डॉक्टर प्रीति जौहरी को इस मेल पर भेज दें, rcamtr@gmail.com. ओके, आप इस पे भेज दें। ओके, सो नाउ कंक्लूजन में, देयर इज इंक्रीज्ड इमोशनल पोल्यूशन, हम लोग सब जानते हैं। इन एडिशन टू स्टे फिजिकली हेल्दी, वी नीड टू स्टे इमोशनली एंड मेंटली हेल्दी ऑल्सो। आपको 5 पॉइंट स्ट्रेटजी मैंने बताई, आप उस स्ट्रेटजी को यूज करो, आप अपना स्केड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो, इमोशनल मेंटल कोई इशू नहीं रहेगा। ओके, एंड याद रखें, इट ऑल स्टार्ट्स विद यू, inside you, not outside you. Okay, so that brings to the conclusion of what I wanted to share. Now I will be I'm available to answer if there are any questions. So प्रीति जी, कोई चैट में कोई क्वेश्चंस आए हैं, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकता हूं। या कोई अभी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चंस? लोगों के शायद ऑडियो खुले नहीं होंगे, तो वो सिर्फ चैट के थ्रू ही कर सकते हैं। Does anybody has any questions? Maybe we have to wait for some time. People may be typing. Or हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें और है? हाँ, क्या क्या ये देखते रहो, ये खुलेगा कैसे? Right now I am seeing in the chat box some comments. No questions.
क्वेश्चंस नहीं है तो या तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत खराब काम किया। Let us see. Let us see. या तो इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सबके समझ में आ गया, या ऐसा समझाया कि सबके ऊपर से निकल गया। Actually, someone has said, "Sir, I want to speak 4 lines poem, if time permits." No, I think we cannot allow. Then how is your experience in USA about COVID-19? Okay, so Someone is asking, how is your experience? Yeah, so how is my experience with COVID in How is it? US? Right? USA. Seema ji. So my experience is that I'm at home. We are all locked down. I am working from home. In fact, my work has increased. Earlier, when I was going out, I had a little bit relaxed, but now my day starts, work day starts 8 in the morning, and I do not have much time until 6 p.m. in the evening. It's so busy all day, so it has become very busy. And also my own experience is like we all are at home. My daughter, who was studying in Yale University, which is about 11-12 hours drive from here, she's back home, so we are all of us are together. We are having lots of fun at home, cooking and all those kind of things. We go out very little. Whenever it is absolutely needed, we wear mask and all that. We go out. There is a different kind of situation in different parts of the United States. You may not hear about every part. You may hear what the news channels tell you. You may hear a lot about New York, right? New York में बहुत ज़्यादा cases आ गए, ऐसा हुआ. So yeah, there was a problem, a lot of problem in New York, and उसका कारण ये था कि बहुत कम समय में बहुत सारे केसेस आ गए थे, बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ था, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाया था. उसके कारण वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, उनकी डेथ भी हुई. लेकिन 1-2 महीने के बाद वो सब हो गया ठीक. सो वो डिक्लाइन भी हो गया, इन्फेक्शंस भी डिक्लाइन हो गए, डेथ्स भी डिक्लाइन हो गए. लास्ट 1-2 दिन से तो कोई भी एक भी डेथ नहीं हुई न्यूयॉर्क में. जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, इसको नॉर्थ कैरोलिना स्टेट है. ये ईस्ट कोस्ट में न्यूयॉर्क से करीब 10-11 घंटे साउथ में है, सो मिडिल पार्ट में है. सो यहाँ पे है, डेफिनेटली है, इन्फेक्शंस हैं, लोग अधिकतर घर में ही रह रहे हैं. बढ़ रहे हैं इन्फेक्शंस, यस, इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं. लेकिन मेडिकल सिस्टम अप टू डेट है, उसमें कोई इश्यू नहीं है. लोगों के पास इक्विपमेंट्स हैं, सब हैं, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं. सो और ऐसा रहेगा अभी थोड़े समय तक तो रहेगा, जब तक कि इसका कोई इलाज नहीं मिलता. So as the experience is almost similar like any other part of the world. Yeah, but I feel Madam very Kamla Pathak. I feel very positive that it will teach us a lot of good things and we'll come out of it soon. Haji. How to handle the stress of breaking news? Madam Kamla Pathak is asking. हाँ जी, ब्रेकिंग न्यूज कितनी बार सुनते हैं? ब्रेकिंग न्यूज हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस ऑफ ब्रेकिंग न्यूज. हाँ, ब्रेकिंग न्यूज कितनी बार सुनते हैं? ब्रेकिंग न्यूज, वो सारे दिन ही ब्रेकिंग न्यूज रहता है. सो उसका तरीका ये है जो मैंने सेकंड स्ट्रेटेजी आपको बताई थी, कि आप न्यूज दिन में एक ही बार देखो और 20-25 मिनट से ज्यादा मत देखो. अगर आप सारे दिन टीवी के सामने बैठे रहोगे तो वो ब्रेकिंग न्यूज आते ही रहेंगे और वो रिपीट भी होते रहेंगे.
क्वेश्चन नहीं, वो रिपीट भी होते रहेंगे। सो मेरा ये मानना है कि अगर आप न्यूज को लिमिट कर दें तो उस और शाम के समय सुने 5, 6, 7 बजे के करीब, उस सुबह नहीं सुने और रात को नहीं सुने। सुबह सुनेंगे तो पूरा दिन खराब, शाम को सुनेंगे, रात को सुनेंगे तो पूरी रात खराब, राइट। सो उसको शाम के समय सुने और लिमिटेड अमाउंट में सुने। यकीन मानिए कि अगर आज आपने सुबह शाम को 6 बजे न्यूज सुनी और कल शाम को 6 बजे सुनी तो आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा। हर घंटे हर मिनट में कोई नहीं चेंज हो रहा है। एक काउंट बढ़ रहा है वो पता है, लेकिन काउंट बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, आप क्या करोगे? आपको करना है, आप अपना काम करो, आप अपना सुरक्षित रहो, दूसरों को सुरक्षित रखो। जो ठीक से नहीं कर रहे हैं काम, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होगा, लेकिन न्यूज को लिमिट कर दो। ब्रेकिंग न्यूज कुछ नहीं होता है, कोई ब्रेकिंग आप देखो, ब्रेकिंग न्यूज कुछ भी नहीं ब्रेकिंग होता है उसमें। thank you. There are no more questions. I think some people have commented like this is excellent and useful webinar. You have done a great job. It was a good presentation. And someone has written that we are running out of time. So I think we should take care of that also. Yes. Yes. Okay. Thank you very much. Thanks for all of you for wonderful comments. And now for a formal vote of thanks, I am with you. First of all, I would like to thank Madam Hema Malini, who very kindly agreed and spared her valuable time with us. And she, as we all saw, that she was taking great interest in the presentation. And a lot of thanks to you, Mr. N.K. Srivastava, sir, for giving such a valuable guidance to all of us in a very interesting and playful manner. We all enjoyed that. I also want to thank all the contributors for the Mask Bank, our management members, our teachers, our students, for their contributions in the Mask Bank. And special thanks to our NSS program officers who have brought this idea into reality. And thanks to Professor Dr. V.K. Saraswat and Mr. Naman Garg for providing us technical support from the Institute of Engineering and Technology, Khandari, and Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. And I would also like to add the name of Mrs. Shipra Rathi of Khazani Welfare Society, who has helped us in getting these masks made from the students or the apprentices at her institute. And finally, lot of thanks to my students who joined us and who are working in the lockdown time with full enthusiasm, and they are happy to serve the society. And finally, thanks to Mr. Pawan Sikarwar and my office staff, and especially Mr. Pawan Sikarwar, who helped me at every front to organize this seminar. So now I would again, with a lot of thanks to our keynote speaker, I would invite Dr. Namrata Mishra for National Anthem, and I would request all of you to stand up for National Anthem. नम्रता जी, आप अपने को अनम्यूट कर दें। Dr. Namrata Mishra, please unmute yourself. She is offline, I think. She has some net connectivity issue. Okay. So we are starting the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। Thank you everyone. Okay, thank you. Bye bye. Bye. Have a good day.